Hi, Shra. Hi, welcome. Thank you. Let's wait for others to also come in, I think. Yeah. Sure. It's a good way of connecting with the seafarers directly on Instagram. I'm sure the messages might go on the vessels as well sometime later, and they might be able to see these videos recorded later on. And so hopefully it will be good for them to correlate and make use of the resources and the suggestions which you are going to make in the video. Yes, I hope that too, Chirag, and I think the video would be available on our IGTV for anybody to watch us. So I think it would be beneficial, and we do hope to discuss a lot of suggestions in today's video. Sure, definitely. Okay, so we can, I think, let's go and start the session. Good afternoon, good day, everyone, wherever you are in this part of the world. And thank you very much for joining in today. I'm sure during the course of this discussions, many more seafarers will be able to join in and will get benefit out of it. So my name is Chirag Bari. I work for International Seafarers Welfare and Assistance Network, and we provide humanitarian support to the seafarers, especially in the South Asia region and in other parts of the world, when they are affected by many kind of crises such as piracy, abandoned, unpaid wages, feeling lonely on board, having some kind of mental health requirements, or various other welfare issues which the seafarer or the family goes through. So during this meeting, we'll be trying to also invite Soumya, my colleague in ICE1. She's with us today. And Soumya is a counselor with ICE1 for almost a year now. And I'll try and bring her in so that she can also introduce herself about. Soumya, would you like to introduce yourself to the audience, please? Thank you very much, Chirag, and I welcome everybody again today for the live session here that we are doing for the first time, and we very much look forward to sharing important and helpful resources with you throughout the session. Like Chirag said, my name is Soumya. I have been working with ICE1 for an year now. And a little about my background. I come from counseling psychology background. I have been practicing it for quite a few years now. And I have had experience of working with different populations among different age groups. I have worked with issues like anxiety, depression, suicidal ideation, among few of the many pertaining issues that exist in our society today. And I'm very excited to share all my experience here with all of you. So thank you once again, Chirag, for having me today. And I look forward. It's a pleasure. We were thinking about, to doing this kind of thing from quite a few weeks now. But I think really I'm glad that we are able to finally do it for the first time. And this is not the last. We will keep meeting with our followers, with more seafarers through these kind of networks. I think it's more easier for the seafarers to now connect on board and also at ashore. So सौम्य इन द लास्ट 1 year हम लोगों ने ये सब देखा है कि पिछले 1 साल में 1.5 साल में कोविड की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां सीफेयर्स उठा रहे हैं। आइसॉन सीफेयर हेल्पलाइन को पिछले मार्च से ऑनवर्ड से लगभग 3 गुना ज्यादा केसेस आने लगे और seafarers from different kind of vessels they were approaching ICE1 for assistance especially in the 24/7 helpline. And the kind of assistance what they need was कि उनको financial help चाहिए, क्या वो ship पर हैं, फंस गए हैं, repatriation नहीं हो पा रहा है, crew abandonment हो गया है, या unpaid wages हैं, या seafarers घर पर हैं, उनको joining नहीं हो पा रही है because of lockdown. इन सब के चलते seafarers जो कि पहले से ही काफी एक challenging environment में सेल करते हैं, काफी उनको परेशानियां रहती हैं,
उसके बीच में ये कोविड का आना और उसकी वजह से आपके हिसाब से कैसा उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा इन सब चीजों को लेके, एंड व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट was being offered to the seafarers when they were going through all of these different kind of challenges? Definitely, like you said, Chirag, all these things are the issues which used to persist पहले भी from COVID, but जैसे COVID आया इनमें हमने और राइज देखा और हमारी हेल्पलाइन के केसेस ने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी कि बहुत सारे लोगों की हमें कॉल्स आती थी जो कि बहुत ज्यादा अनसर्टेन होते थे। ऐसा भी होता था कि उनके साथ हाल ही में ये सिचुएशन ना हो रही हो पर वो फ्यूचर का सोच के बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज मेरे साथ हो सकती है। तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। हमारी हेल्पलाइन के स्टैटिस्टिक्स हमें एक लिमिट तक ये बता पाते हैं कि कोविड की वजह से सीफेयरर्स ने ज्यादा स्ट्रेस लिया है इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग इन नॉर्मल टाइम्स, बिकॉज वो बहुत यूज टू हैं। सीफेयरर्स की नेचुरली भी एक रेजिलियंस होती है, अपनी जॉब में डेवलप हो जाती है वो रेजिलियंस, बट क्योंकि कोविड आया और कोविड के साथ इतनी अनसर्टेनिटी आई तो बहुत सारे लोग थे जिनको काफी दे कंप्लेन्ड ऑफ रेसिंग नेगेटिव थॉट्स या उनको बहुत एंशियस फील हो रहा है। उनको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो कभी अपनी फैमिलीज के पास लौट भी पाएंगे या नहीं ड्यू टू द डिलेज इन क्रू चेंज। तो ये सारे हमने इश्यूज और इनसे भी कई ज्यादा इश्यूज हमने अपनी हेल्पलाइन पे एक्सपीरियंस करे। एंड हेल्पलाइन का जो स्टाफ है इंक्लूडिंग मी, हम सब ने इन सीफेयरर्स को जो कि हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू आए थे, डायरेक्ट फोन कॉल्स, लाइव चैट्स, व्हाट्सएप, इवन ईमेल्स, हमने इनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया। क्योंकि बहुत सारे सीफेयरर्स का ये कहना था कि अपनी ये जो मन की बातें हैं वो ऑन बोर्ड किसी से वो कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको काफी ज्यादा इस चीज की घबराहट होती है कि कहीं इस वजह से उनकी जॉब ना चली जाए। अभी ऑलरेडी टाइम्स बहुत डेस्परेट हैं और अगर वो अपनी मन की बात किसी से कहेंगे तो उनकी जो जॉब है वो रिस्क हो सकती है। इसीलिए उन्होंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया कि वो हेल्पलाइन को अप्रोच करें, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन कॉन्फिडेंशियल है, मल्टीलिंगुअल है और 24/7 365 डेज वो अवेलेबल रहती है। तो आप कभी भी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे डेफिनेटली होता है। और इसके थ्रू सीफेयरर्स को एक सेंस ऑफ सपोर्ट डेवलप हुआ कि वो कभी भी हेल्पलाइन पे फोन कर रहे हैं तो वहां से उनको किसी से अपने मन की बात आगे रखने को मिल रहा है। हमारा जो हेल्पलाइन का सारा स्टाफ है वो इमोशनल सपोर्ट में प्रॉपरली ट्रेन्ड है। एंड सो उनको एक फीलिंग आई कि किसी नए पर्सन से बात करके जो उनको पहले से नहीं जानते तो उनको उससे एक राहत मिली और वो अपने विचार आगे रख पाए। बाकी जो पर्सनली मैंने केसेस से डील किया है जो थोड़े से ज्यादा कह लीजिए लंबे थे या उनके जो इंटेंसिटी थी वो ज्यादा सिवियर थी, उनको ज्यादा परेशानियां हो रही थी, तो उन सबको भी हमने काफी अपनी तरफ से टिप्स प्रोवाइड करे। जैसे कि हमने अपनी रिलैक्सेशन ऑडियो शेयर करी जो आप सेशन के बाद भी सुन सकते हैं और वो आपको हेल्प करे ऑन बोर्ड रिलैक्स करने के लिए जब तक आपका टाइम बचा हुआ है ऑन बोर्ड। एंड काफी सीफेयरर्स हमारे पास वापस आके उन्होंने ये बात बोली भी कि मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि मेरी प्रॉब्लम को मैं नहीं ठीक कर सकता बट उसमें जो मैं अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस फील कर सकता हूँ, अपने आप को इस सिचुएशन में हिम्मत बना के रख सकता हूँ, तो वो सहारा हमें हेल्पलाइन के थ्रू मिला। सो ऐसे और कई एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कुछ सीफेयरर्स ऐसे हैं जो हेल्पलाइन पे आते हैं, बात करते हैं, उसके बाद वो थोड़े टाइम तक बात नहीं कर पाते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स। कभी उन्हें नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं या वो काम में बहुत बिजी रहते हैं और उसके बाद भी वो जब हेल्पलाइन पे आते हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलता है। तो कुछ सीफेयरर्स इस चीज को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हेल्पलाइन पे आना इज नॉट जस्ट वन वे एक्सेस बट आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इमोशनल सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो इसके थ्रू ये सिर्फ एक सिंपल वेज जो मैं बता रही हूँ आपको, इसके थ्रू हमने सीफेयरर्स को ग्लोबली सपोर्ट किया, स्पेशली हमारे इंडियन सीफेयरर्स को। बहुत क्रूशियल आपने ये इन्फॉर्मेशन दी सौम्या। जिस तरह से मतलब हम लोग खुद इस चीज के भागीदार रहे हैं, हम लोगों ने आइसवन साउथ एशिया में
जब भी कोई केसेस आए जैसे हेल्पलाइन के थ्रू या इंडिविजुअल सीफेयर्स के थ्रू, तो इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम रहा है, क्योंकि सीफेयर्स इस वक्त इतनी परेशानी से गुजर रहे थे। अगर मैं कुछ केसेस के लिए नरेट करूं आपको, किस तरह से साउथ एशिया ने, जो इंडिया में ऑफिस है, उन लोगों ने इस केसेस को हेल्प करा। सीफेयर्स रिपार्टिंग नहीं कर पा रहे थे और इंडियन ऑफिस ने करीबन 18 इंडियन एम्बेसीज के साथ मिलकर उनसे अप्रोच कर सीफेयर्स को प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी जो फ्लाइट्स चल रही थी हमारी वंदे भारत फ्लाइट्स, उनमें उनको प्रायोरिटाइज्ड सीट दिलवाई ताकि वो लोग उन फ्लाइट्स में ट्रैवल करके घर आ सकें। और क्योंकि शिप्स का टाइम बहुत शेड्यूल कम होता था पोर्ट्स में आना, और जब वो पोर्ट्स में आए और उसका जो टेन्योर होता था शिप्स का पोर्ट में रहने का, वो बहुत कम होता था। उसके बीच में वो सब अरेंजमेंट करना कि शिप में से वो साइन ऑफ कर पाए, एक कंफर्म फ्लाइट के टिकट के बिना उनको कंफर्मेशन नहीं दिया जाता था। बहुत इसमें हमारी एम्बेसी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा सीफेयर्स के लिए। हमारी मिनिस्ट्रीज ने भी बहुत हेल्प करी है इन चीजों में। और सीफेयर्स का जो इश्यूज थे, जैसे कि कई और इश्यूज जैसे वो घर नहीं आ पा रहे हैं, साइन ऑफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस कंट्री में लॉकडाउन हो रखा है, लेकिन फैमिलीज बीमार हैं, उसकी वजह से सीफेयर्स बहुत ज्यादा परेशानी से निकले कि वो क्या करेंगे इस सिचुएशन में लेके। उनको एक सहारा की जरूरत था कि कोई हमारी फैमिलीज का इस वक्त हमारा ध्यान रख ले, कोई हमारी फैमिली से दो बातें कर ले, लोकल बंदा, ताकि हम लोग शिप पर सेल अगर करें तो हमारी फैमिलीज की जो दिक्कत है वो कोई और देख सके। इस वे में भी आयुष्मान ने अपने थ्रू और अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मिलके फैमिलीज तक हेल्प पहुंचाई। कई फैमिलीज ऐसा था कि उनकी डिलीवरी हो रही थी और वो हॉस्पिटल उनको जाना था, और वो सीफेयर वहां पे परेशान था शिप पे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस वक्त वापस आऊं करूं। लेकिन आयुष्मान उस वक्त उनकी फैमिलीज के साथ खड़े रहे, और कई ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प करी उनकी फैमिली तक रीच आउट करने के लिए। तो ये सब करते करते, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते करते यहाँ तक हम पहुंचे कि पिछले साल तकरीबन 8 से 10 हजार सीफेयर्स, इंडियन सीफेयर्स तक आयुष्मान पहुंचा। बहुत एक बड़ी बात थी, और जिसमें कईयों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला। ऐसे भी सिचुएशन थी कि सीफेयर्स के जो फैमिलीज थे, उनको, वो लोग बीमार थे, उनके बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि वो शिप पर नहीं जा पा रहे थे। उसके बीच में आयुष्मान ने थ्रू द सीफेयर्स इमरजेंसी फंड, उसके थ्रू सीफेयर्स ने उनकी फैमिलीज तक वो एक फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाई ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके, ताकि जो इमरजेंसी नीड्स हैं वो उनको मिल सकें, और बच्चे जो है स्कूल वापस अगर पढ़ाई चल रही है तो वो चालू कर सकें और उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये सब चीजें भी इसमें काफी उनको हेल्प करी ताकि उनका ये ध्यान रखा जाए। एंड आई थिंक इसके बीच में हम लोगों को कई ऐसे केसेस आए जैसे कि सीफेयर्स वर लुकिंग फॉर सुसाइड, मिसिंग सीफेयर्स, डिप्रेस्ड बहुत ज्यादा थे। वहां पर उन केसेस में भी बहुत ज्यादा हमारी मेहनत लगी कि सीफेयर्स और उनकी फैमिली के साथ बातचीत करना। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल चैट्स व्हिच आई थिंक सौम्या आप भी उसमें भागीदार थे। इन केसेस में हम लोगों को क्या एडवाइस करना चाहिए सीफेयर्स को, क्या हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अगर उनके मन में ऐसा कुछ इफ दे आर फीलिंग लो और इफ दे हैव एनी सच काइंड ऑफ थॉट्स, हम लोग क्या उनको सजेस्ट कर सकते हैं? सौम्या, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बीच में लाना चाहूंगा। ये आपने बहुत ही जरूरी पॉइंट रेज किया है चिराग, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी बात का स्ट्रेस हो रहा होता है और हमें कभी कभी इमीडिएट हेल्प नहीं मिल पाती है, तो हम क्या वो कर सकते हैं अपने लिए, या हम किसी को ऑन बोर्ड जानते हैं जो ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहा हो और हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वो आजकल नहीं है वैसे जैसे हम उन्हें यूजुअली देखते हैं, तो कैसे उनकी हेल्प करी जाए, अपनी भी और खुद की भी। पहली बात तो मैं ये सारे सीफेयरर्स और अगर उनकी फैमिलीज भी हमसे कनेक्टेड हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी बात जो है वो किसी से शेयर करें, जिससे आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिले कि आप वो बात अकेले नहीं, उस स्ट्रगलिंग टाइम से अकेले नहीं गुजर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम बात अपने अंदर रखते हैं तो हमें ये फीलिंग रहती है कि ये मेरी अपनी अकेले की प्रॉब्लम है, इससे मैं अकेले डील कर रहा हूँ। बट जब हम इसको निकालते हैं तो हमें एक सेंस ये फील होता है कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें और मुझे हेल्प मिल सकती है। तो ये मैं जरूर कहूंगी अपने सीफेयरर्स से कि वो किसी से भी, जिससे भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं या किसी को भी ट्रस्टवर्दी समझते हैं ऑन बोर्ड,
अपने कलीग्स को या अपने सीनियर्स को, उनसे जरूर ये पार्ट डिस्कस करें और इस फियर में ना रहें कि आपकी जॉब को कोई खतरा है। तो हमें मेंटल हेल्थ के अराउंड या सिंपली अपनी मन की बात कहने के अराउंड वो डायलॉग को हमें नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। और वो मैं आप आइसवन तो अपने लेवल पे बिल्कुल कर ही रहे हैं बाय रनिंग वेरियस कैंपेन्स, बट सीफेयरर्स को भी खुद से ये एनकरेजमेंट मैं देना चाहूंगी कि वो स्टार्ट करें, बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कुछ भी ज्यादा नहीं है और हम सब अपनी मेंटल हेल्थ से हैं। इसीलिए इसके बारे में बात करना, इसको नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आपके दिमाग में कैसे भी बुरे ख्यालात आए तो अपने आप को वेज जरूर ढूंढिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के, अपनी फोकस शिफ्ट करने के, जैसे हम कहते हैं फोकस या पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने के। तो खुद से ये क्वेश्चन पूछना कि अभी मुझे ऐसे बुरे ख्याल आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो कि आपको और पुश कर सकता है ये नेगेटिव थॉट्स के स्पाइरल में। आप अपने आप से एक्सेप्ट करें कि क्योंकि टाइम्स अभी ऐसे हैं, क्योंकि मुझे साइन ऑफ नहीं मिल पा रहा, या मैं अपने घर से दूर हूँ, या मेरे घर पे कुछ इश्यूज हैं जिसके लिए मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा, ये एक फैक्ट है, ये मेरी लाइफ में भी चल रहा है और मैं इसको एक्सेप्ट करूं। और इसके बाद ये पूछना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए इस सिचुएशन में, क्या अभी कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। क्या एक मैं डेली टाइम अपने रूटीन में फिक्स कर सकता हूँ जिसमें मैं अपनी फैमिली से बात कर पाऊँ, मैं कनेक्टेड रहूँ, मैं उनसे अपडेट्स लूँ उनकी हेल्थ के बारे में। क्या मेरे सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं जो लोकली बेस्ड, जो मेरे घर के आसपास नियर बाय, जो मेरी फैमिली को विजिट कर सकते हैं और उनको उस टाइम पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं हूँ। और ऐसे कई सारे सवाल, और ये जरूर पूछें अपने आप से कि अभी क्योंकि मैं ऑन बोर्ड हूँ, मैं घर से दूर हूँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ के क्या कर सकता हूँ। वहां पे तो घर पे इश्यूज हैं एंड कोई ना कोई फैमिली में इन्वॉल्व है, कोई ना कोई ख्याल रख रहा है, क्या मैं इस दौरान अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख रहा हूँ और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे पास कुछ केसेस आए थे हेल्पलाइन पे जिसपे सी फेरर्स कहते थे कि उनको बिल्कुल भी होप फील नहीं हो रहा है, दे आर नॉट सीइंग एनी होप फॉर द फ्यूचर। सो हमने उनको ऐसे एनकरेज करने की कोशिश करी कि इस मोमेंट में अगर आपको होप फील नहीं हो पा रही है, क्या वो चीजें हैं जो आपको लगता है अगर आप उनको देखेंगे या उनके बारे में बात करेंगे तो आपको और होपफुल फील होगा। तो एक सी फेरर हमारे पास आए भी थे और उन्होंने कहा था कि मैं डेली अपनी एक वेकेशन की फोटोज देखता हूँ फोन पे, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि जब मुझे फाइनली साइन ऑफ मिलेगा मैं एक और वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ जा पाऊंगा। तो अ शिफ्ट इन योर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाएं अपने लिए कि आपको क्या क्या करना ऑन बोर्ड पसंद है और क्या वो चीजों में आप टाइम निकाल पा रहे हैं। क्या आपको अगर वर्कआउट करना पसंद है, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना पसंद है, क्या अपने काम के बीच वो आप कर पा रहे हैं, हाल ही में आप उसको टाइम दे पा रहे हैं या नहीं। बेसिक चीजें लाइक अच्छा खाना कैन हेल्प यू टू कोप अप विद योर स्ट्रेस। सो हम जब भी स्ट्रेस लेते हैं हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है या हमें फटीग होने लग जाता है, हमें हेडेक होने लग जाते हैं। तो ये साइंस भी अपने अंदर आप देखें, अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो आप अपने आप को काइंड ऑफ एक मेथड जो हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉप। और ये हमारी जो सीफेयर हेल्पलाइन की गाइडलाइंस हैं उस पे भी मेंशन है कि स्टॉप स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग योरसेल्फ, टी स्टैंड्स फॉर टेकिंग अ ब्रेथ, O stands for just observing your environment। क्या चल रहा है अभी मेरे आसपास, क्या मैं अपने बॉडी में सिम्टम्स देख रहा हूँ, कुछ मुझे डिजीनेस फील हो रही है या मेरे हैंड्स शेक हो रहे हैं या मुझे ब्रेथनेस में प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन पुटिंग अ पर्सपेक्टिव, क्या मैं किसी चीज को लेके बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे साइन ऑफ नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी भी साइन ऑफ नहीं मिलेगा। तो क्या मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ और इसके बारे में इमोशनल होके मैं और स्ट्रेस ले रहा हूँ। तो फैक्ट ये है कि अभी साइन ऑफ नहीं मिला है बट आगे मिल सकता है, इसीलिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं इसको मैं होपफुल हो रहा हूँ कि मुझे आगे चल के साइन ऑफ मिलेगा। अनदर एडवाइस आई वुड गिव इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। जब हम एंशियस होते हैं या स्ट्रेस होते हैं हम अपनी ब्रेथ पे फोकस नहीं करते हैं और हम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील करने लग जाते हैं। सो just taking a step back and focusing on your breath can really really physiologically help you to calm down। और अगर
ऐसा होता है कि आप फील कर रहे हैं कि आप नहीं काम डाउन हो पा रहे, या आप डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि यू आर गैस्पिंग फॉर एयर, आपको सांस नहीं आ रही, दैट इज अ साइन कि आपको और धीरे धीरे वो ब्रीदिंग करनी है, जिससे वो स्ट्रेस आपके अंदर से धीरे धीरे निकले. सो टेकिंग योर टाइम, डूइंग डीप ब्रेथ्स, a good way of doing deep breathing, what I call is 5-3-7. So 5 is taking your breathing in for 5 seconds, holding it for 3 seconds, and then releasing it out from your mouth slowly for 7 seconds. So 5-3-7 is a very good method of just doing the deep breathing. कुछ लोग होते हैं वो नहीं बैठ पाते for 10-15 minutes due to their work schedule. But अगर वो ये भी कर ले अपने रूटीन में, तो that could really help them to de-stress and start to have positive emotions inside of them. आई थिंक बहुत ही यूजफुल टिप्स आपने बताई सौम्या, बहुत ही इजी तरीके से. आई थिंक ये सब प्रैक्टिस करना बहुत इजी है. कहीं पर भी हो आप लोग, शिप पर हो चाहे आप घर पर हो, ये सब चीजें अपनी रूटीन्स में लाना, चाहे आप शिप पर नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप अपना छुट्टी मना रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, डेली रूटीन में ये सब टिप्स अगर आप धीरे धीरे लेकर आएंगे तो आई थिंक दिस विल बिकम अ हैबिट, and that will give you a lot of I think good positive emotions in your own personal life. आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच रहेगी, हर चीज को अप्रोच करने का एक अलग तरीका रहेगा. हमारी शिप्स की लाइफ अभी बहुत चैलेंजिंग होती ही जा रही है. अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें कि सीफेयरर्स आर मोर स्ट्रेस बिकॉज पायरेसी इश्यूज इतने थे शिप्स के. जब वो शिप पर जाते हैं उनको नहीं पता कि कब पायरेट शिप पर आ जाएं, या फिर उनको क्रू जो है कॉम्प्लीमेंट कम हो रहा है शिप पर, या अभी डिफरेंट नेशनलिटीज आ गई हैं शिप्स पर, तो वो कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करें, कैसे नहीं करें. तो एक तरह से जो क्रू मेंबर्स थे और उनके और भी इश्यूज थे, जैसे कि भाई अपना शिप पे हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट की वजह से हम लोग अपने अपने कैबिन्स में चले जाते हैं, एक सोशल आइसोलेशन होता जा रहा है. और उसके ऊपर अब ये कोविड ने हमारे को जो इम्पैक्ट करा है, और जैसे कि हम लोगों ने आज डिस्कस करा कि कितना ज्यादा उसमें हम लोगों को केसेस आए और किस तरह से सीफेयर्स उसमें इम्पैक्ट हुए हैं. आई थिंक ये पॉजिटिव टिप्स लेकर जो सौम्या जी ने अभी हमें दी हैं, आई थिंक वी कैन रियली हेल्प इन मेकिंग अवर लाइफ अ लिटिल बिट बेटर. और साथ ही में हम लोग, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ कॉन्टैक्ट में रहें इस वक्त, या अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉन्टैक्ट में रहें, बट एट द सेम टाइम हम लोग उसको कम्युनिकेशंस को भी इस तरह से यूज करें कि वो एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बने. शिप पर अगर हम लोग अपना ध्यान दें अपने काम पर भी और साथ में अपनी फैमिली का पर भी, और एक बैलेंस बना के हम लोग अपनी लाइफ को आगे भी लेके चले, तो उसमें सब लोग ही ठीक रहते हैं. तो आई थिंक सौम्या, एनी लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू फॉर आवर लिसनर्स एंड आवर व्यूअर्स? In just addition to what we discussed, Chirag, I was just looking at the comment section, and a lot of people have commented that recreational activities का on board होना बहुत जरूरी है. जैसे कि आपने भी अभी बोला कि ऑलरेडी इंटरनेट की वजह से जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम हो गया था, और अब तो लोग और ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जिसमें सिर्फ शिपिंग कंपनीज ही नहीं, सीफेयर एज ए टीम, एज ए ग्रुप भी सोचे इस बारे में कि हमें एक डेडिकेटेड टाइम फिक्स करना चाहिए फॉर हैविंग द इंटरेक्शंस डेली बेसिस पे. कभी कभी ऐसा बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल मूड्स, कि बात करने का मन नहीं करे. सो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन. नॉर्मलाइजिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पर the encouragement, the environment on board should be कि we are all a team, even if we come from different nationalities, and becoming a part of that can be achieved really well by recreational activities. So किसी भी प्रकार की recreational activities में अगर seafarers engage करे, of course not alone but as a group, तो ये बहुत beneficial रह सकता है उनके लिए. और ऐसा भी हमें क्वेरीज आई हैं हेल्पलाइन पे कि पहले कोई सीफेयर बोलते थे कि क्योंकि दूसरे नेशनैलिटी का है उनको बहुत झिझक है बात करने में, पर जब उन्होंने टाइम निकाला तो दे कुड एक्चुअली रिलेट, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में भी वो चैलेंजेस थे जो सीफेयर फील कर रहे थे. तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील हुआ, एक सेंस ऑफ रिलेशन फील हुआ,
एंड दे सेड कि वो ये चीज तभी कर पाए जब दे वर टुगेदर इन सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी. So I think that's also very important. And in conclusion, I would just say that it is, again, I would like to retaliate back on making the dialogue around mental health, making just speaking your mind to somebody very normal, feeling what you feel during this time, during delayed repatriations or delay in crew change, very normal. बहुत ऐसे सीफेयरर्स आते हैं जो कहते हैं कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्यों, से मुझे ये फील हो रहा है एंड थिंग्स मैं अपने आप पे ख्याल करूंगा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा, मैं उन चीज पे फोकस करूंगा कि हाउ कैन आई कोप अप, तो ये टाइम निकलेगा जल्दी एंड आई विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ इट. So instead of chasing the why, we should chase more of the how we can improve our situation. And I would just like to retaliate back on that, doing simple steps, being in a routine is very important during this uncertain time. And just asking this question that how can I help myself in this time? What is it a small cup of coffee that I can make in my cabin which can help me, or reading a book, or just as simple as looking at a family picture can help me develop that positive emotion, develop that sense of shifting my focus from any negative thought to a more positive or a neutral thought. I hope that seafarers can benefit out of this. आई थिंक बहुत ही यूजफुल बातें आपने सौम्या अभी बताई. सबसे पहले कि जैसे कि हम लोग अपने बुखार होता है तो हम लोग जाके मेडिसिन मांगते हैं कि हमें बुखार हो गया, इसी तरह अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमारे मेंटल हेल्थ में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, या हमारे को ऐसा लग रहा है कोई एंजाइटी है, या हम किसी वजह से कुछ ज्यादा चिंतित हैं, इसके बारे में भी हम सबको ओपनली बात करनी चाहिए. इसका जो स्टिग्मा एक है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि मेरे को भी क्यों हो रहा है, जैसे आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस चीज को अभी बताया. आई थिंक हम सबको इस चीज के लिए ओपन होना चाहिए, अपने क्रू मेंबर्स को भी, सीनियर लीडर को भी शिप पर इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, जूनियर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपस में आके सभी लोगों से बातचीत करें, सभी लोगों से इसके बारे में इंटरेक्ट करें, अपने दिल की बातें अगर शेयर करना चाहते हैं किसी बंदे से, किसी शिप में क्रू से, तो वो प्राइवेट में कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मैनर में कर सकते हैं. ये एक एनवायरनमेंट शिप में सीनियर लीडर्स को इसमें देखना चाहिए, एक बनाना चाहिए. और साथ ही में जैसे कि आपने बताया रिक्रिएशन एक्टिविटीज, आई थिंक दिस इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि यही एक तरह है कि हम लोग एक टीम बिल्डिंग बना सकते हैं. जैसे हम लोग टीम बिल्ड करते हैं, एक दूसरे को बारीकियों से जानते हैं, अच्छी और बुराई चीज हर एक इंसान में होती है, लेकिन हम लोग आपस में खेल कर, कूद कर और आपस में डिस्कस करके हम लोग ये सब चीजें, अगर छोटे मोटे मन मुटाव भी होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं. तो ये चीजें आपने बहुत यूजफुल टिप्स बताई सौम्या आज हमें, और आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये सीपीएस को आगे आने वाले टाइम में उनको बहुत हेल्प करेंगी कि हम लोग अपना कैसे ध्यान रखें, हम अपनी चीजों में कैसे बदलाव ला सकते हैं जिससे हम अपना लाइफ को और इजी और हेल्दी बना सकें. तो इसमें आई थिंक बहुत नेसेसरी है. और अगर कोई भी सीपेयर अगर शिप पर है इस वक्त या अशोर है, उनको आइसवन के थ्रू आइसवन की कोई भी हेल्प चाहिए, अभी आइसवन ने आइसवन का एक ऐप भी डाउनलोड करा है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आइसवन के ऐप में जाके वहां पर हमारे अप्रोच कर सकते हैं. दैट इज एन ऑफलाइन ऐप, तो आप अपनी सीफेयर हेल्प हेल्पलाइन को भी आप अप्रोच कर सकते हैं वहां पे, और बाकी सब रिसोर्सेज वहां पर हैं. जो गुड मेंटल हेल्थ गाइड्स हैं जैसे सौम्या ने जो रेफर करी, वो सब अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर भी और वेबसाइट पे भी. आप लोग जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. अपने फ्री टाइम पे उसको पढ़िए, उसको अपने पर देखिए कि कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसको लाने के लिए कैसे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं. और हेल्प करिए एटलीस्ट अपने एक कुलीग को और शिप में कि वो आइसवन को जाने, आइसवन की रिसोर्सेज तक पहुंचे, ताकि ये चीज जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है सीफेयर्स के लिए, आगे भी और लोगों तक पहुंचे. आई थिंक इसके साथ मैं ये सेशन, अगर कोई हमारे सीफेयर्स की कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक अप एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन. And just a good reminder for all the seafarers, thank you for mentioning about the self-help guides, Chirag, and the app. मुझे ऐप की बहुत अच्छी एक बात ये लगती है कि हमारी जो ऐप है उसमें जितनी भी हमारी मेंटल हेल्थ गाइड्स हैं वो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आप एक्सेस कर सकते हैं. तो बहुत ही ये आई थिंक एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है. कभी कभी सीफेयरर्स डाउनलोड नहीं कर पाते वेबसाइट से, तो दे कैन यूज आवर ऐप.
and that also includes our relaxation audio at sea, जिसके थ्रू काफ़ी seafarers ने हमें feedback किया कि they were able to feel more relaxed during stressful time. So मैं सबसे निवेदन करूँगी कि ये ऐप को एक्सप्लोर ज़रूर करें, एंड जैसे कि चिराग जी ने कहा कि ये रिसोर्सेज अपने फेलो सीफेरर्स से ज़रूर शेयर करें या उनकी फैमिली से. गाइड्स हमने ऐसे फॉर्म करी हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल को बेनिफिट कर सकती है जो सी फेयरिंग वर्ल्ड से रिलेटेड हैं. तो इसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए, इसमें बहुत सारी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं. थैंक यू सो मच सौम्या वंस अगेन. मेरे को ऐसा कोई कमेंट या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है. आप क्या आप देख पा रहे हैं सौम्या कुछ? आई थिंक इंटरनेट एक हमारे सीफेयर ने मेंशन करा है इंटरनेट के बारे में. अगर इंटरनेट ज्यादा मिले, आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है. अगर मैं बात करूं अपने, जब मैं आई यूज्ड टू सेल अराउंड 2010 एंड 11, उस वक्त हमारे पास कोई इंटरनेट होते नहीं थे. Even I have never used internet on my personal phones or laptops on board when we used to sail. So technology काफी change हुई है, काफी advance हुई है. The thing is that what we need, what is the need of the hour is कि हम लोगों को उसको सही से यूज करना है शिप पे टेक्नोलॉजी को, ताकि वो हमारे फायदे के लिए यूज हो, हमारे नुकसान में ना जाए. क्योंकि शिप पर आपको भी पता है, सबको पता है कि काम भी बहुत होता है और किस तरह से उसमें एनवायरनमेंट भी रहता है. उसको हमें एक बैलेंस बना के हमें आगे बढ़ना है और इंटरनेट को उसके यूज में लेकर आए. अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए हम इंटरनेट को यूज करना चाहिए. बिल्कुल चिराग, आई एब्सोल्युटली अग्री. एंड इंटरनेट एक साधन है जिसके थ्रू सीफेयरर्स कनेक्टेड रहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, तो वो बहुत 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 ज़रूरी है. पर इसके बीच में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा टाइम ऑफ लेके अपनी स्क्रीन से रियल टाइम इंटरेक्शंस में इंगेज करें. एंड आई थिंक जैसा कि आपने कहा कि वो करना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक बहुत ही अच्छे वे में टीम बिल्डिंग हो सकती है, और कुछ भी अगर मन मुटाव भी हो छोटे मोटे तो वो भी हट सकते हैं. तो आई होप हमारे सीफेयरर्स एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाए बिटवीन यूजिंग इंटरनेट एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑन बोर्ड. श्योर, डेफिनेटली, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और चीजें काफी इम्प्रूव हो रही हैं और भी आगे इम्प्रूव होती जाएंगी. अभी जो फैसिलिटीज सीफेयर्स को मिल रही हैं वो शायद पिछले 10 साल पहले नहीं थी. तो आई थिंक मेक फुल यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ. और सभी को मिलजुल के हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और चीजें और भी बाकी चैलेंजेस हैं उसको भी आई होप it can be sorted out. Thank you so much, Soumya, once again. और मैं सभी सीफेयर्स जो यहाँ पर हमारे साथ आज जुड़े हैं और सभी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ी हैं, उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड जॉइनिंग अस टुडे. And we'll be there, and let us know if you have any other topics in your mind that which you need us to discuss. We'll be more than happy to bring it out. So thank you everyone for joining in. Thank you so much, Chirag, and thank you everyone for joining in and supporting us today. We look forward to many sessions again, and thank you once again to all the other organizations and people who keep supporting us. Thank you. Thank you. Take care. Bye, Chirag. Thank you. Everyone. Bye. Bye.